and then we will talk about the reference frame. I already told you what the reference frame, and then we will study about the relative velocity, and then we will see the derivation of relative velocity, how we can use the formula. ठीक है, किस तरह से derive, कहाँ से derivation हुई है formula की, we will study also about that. Now when we talk about the relative motion, or when we talk about the motion chapter, I told you that there is one specific thing which we require. ठीक है, किसी भी motion को study करने के लिए हम सबसे पहले जो एक point है उस point की बात करते हैं, and that is the point from where we are going to study the motion. कहाँ से हम उस motion को study कर रहे हैं, and as I told you that point is also known as the reference point. ठीक है, जिसके with respect we are observing the motion of an object, उसको हम क्या बोलते हैं, reference point बोलते हैं. ठीक है, now in this topic relative velocity or relative motion, in this topic we are again focusing on the reference point. ठीक है, हम जो है वो रेफरेंस पॉइंट की ही बात यहाँ पे करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है, किसी भी पार्टिकल का मोशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, इफ वी ऑब्जर्व एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट और पोजीशन, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज इट. See that if we observe any point or particle with respect to, WRT means with respect to some position, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो द वर्ड रिस्पेक्ट कनेक्ट द वर्ड रिलेटिव. ठीक है, जहां से हम उसको देख रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन, उसको हम क्या उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, रिलेटिव वर्ड से कनेक्ट करते हैं. दिस इज ओनली द रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, जैसे सपोज कर लो आप बाइक पे कहीं पे जा रहे हो, यू आर मूविंग ऑन अ बाइक and the speed of your bike is 60 meter per second. Suppose, ठीक है, it's your bike and it is moving with 60 meter per second, and some other your friend is also moving, and the he is in car and the speed of his car is, let it be 100 kilometer per hour. Now when both are starting from the same point, यहां से जब वो सेम पॉइंट से स्टार्ट किए, अपना जर्नी स्टार्ट किया, ट्रेवल करना स्टार्ट किए, तो थोड़ी देर तक, तो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तक तो शायद वो एक दूसरे के साथ रहेंगे. बट सिंस यू नो दैट स्पीड ऑफ कार इज ग्रेटर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ बाइक, तो कार जो है वो बाइक से आगे निकल जाएगी. एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ कार for me who is at rest, for him the speed of bike is 60 meter per second and the speed of car is 100 kilometer per hour. लेकिन ये किस पर्सन के लिए है जो यहाँ से इसको देख रहा है, who is at rest. सपोज करो मैं से कहीं साइड में खड़ी हुई हूँ and from there I am observing the speed of bike and speed of car, तो for me it is 60 meter per second or it is 100 kilometer per hour. But when they both study each other, when they both are observing the motion of each other, so their speed is not 60 or their speed is not 100 kilometer per hour. ठीक है, when both are observing the motion of each other, since both दोनों ही मोशन है, इस दोनों के लिए स्पीड जो एक्चुअली स्पीड है that is 60 meter per second or 100 kilometer per hour, there will be change in the speed. So this क्यों, अब मेरे लिए तो मैं तो यहाँ से देख रही हूँ, यहाँ पे मैं एक रेफरेंस पॉइंट ये है जो कि मैं हूँ,
एंड आई एम ऑन रेस्ट, मुझे तो 60 मीटर पर सेकेंड और 100 किलोमीटर पर आवर नजर आ रही है, पर जैसे ही रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ, सपोज नाउ कार इज द रेफरेंस पॉइंट, the person who is sitting in the car, he is observing the motion of bike, तो उसके लिए it is not 60 मीटर पर सेकेंड because car itself is in motion, और कार के साथ साथ बाइक भी मोशन पे है, ठीक है. सिमिलरली if the reference point changes, अब now car is not reference point, bike is reference point, so bike is also in motion, and for bike the car is not moving with 100 kilometer per hour, there will be change in the speed of the car, and what is that change I will tell you. But here just only thing which I want to tell you is that as the reference point changes, the motion, relative motion will also changes. Sometimes this relative motion increases and sometimes it decreases. It all depends upon that in which direction the bodies are moving, whether they are moving in the same direction or they are not moving in the same direction, they are moving in the opposite direction, or some one body is moving, another is at rest, or one body is moving over the other body. तो ये सारा जो है this comes under the heading of the relative motion. Just a minute. सार्थक शुक्ला आपका जो है वो relative motion के बारे में, ठीक है. अब इसी में जैसे एक एग्जांपल मैं और दे रही हूँ आपको. सपोज यू आर सिटिंग इन द ट्रेन, ठीक है, ये आप हो और ये आपके साथ कोई दूसरा आपका फेलो पैसेंजर है, एंड ट्रेन इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड सपोज, ठीक है. ट्रेन का जो मोशन है, ट्रेन द मोशन ऑफ द ट्रेन और द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस द इनसाइड द ट्रेन यू एंड योर फेलो पैसेंजर. अगर आप अपने फेलो पैसेंजर को देखोगे तो आपको ये कैसे लगेगा, रेस्ट पे, ठीक है. यू आर ए एंड इट इज बी, ठीक है. बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है. आप रेफरेंस पॉइंट हो और आपको बी कैसा लग रहा है कि ही इज एट रेस्ट, ठीक है. नाउ यू कम आउट ऑफ द ट्रेन. अब आप जो है वो यहां से उठे और आप ट्रेन के बाहर आ गए, एंड ट्रेन इज मूविंग विद द 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. नाउ यू आर हियर, आप यहां से, अब ए इज आउटसाइड द ट्रेन. Now you're observed and the B is inside the train and he is at rest. आप बाहर आ गए and now you're observing the motion of the train. आप ट्रेन की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो. तो what are you observing? That the speed or the velocity of the man is also 10 meter per second. He is moving with the speed of the train. जितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है. If the man is inside the train, he is at rest. And you, the observer, is outside the train. Observer is also at rest outside the train. ट्रेन के बाहर ऑब्जर्वर भी क्या है, रेस्ट के ऊपर है. तो ऑब्जर्वर के लिए जो वेलोसिटी है मैन की, हु इज इनसाइड द ट्रेन, हिज वेलोसिटी इज ऑल्सो 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ अनदर केस, you are outside the train and the person who is inside the train is moving inside the train with the velocity 2 meter per second. अब ये जो B है वो आपका ट्रेन के अंदर ही it is also moving and inside the train his speed is 2 meter per second. Now what will be the velocity of man for the person who is observing the man from side, ठीक है. ये जो अंदर B है, B is also moving inside the train and the velocity of B is 2 meter per second in the same direction in which the train is moving. Then how will you calculate his velocity? Tell me. कितनी होगी उसकी velocity? सोचो.
me what is the velocity of B with respect to A when he is moving inside that A and the motion of train both are moving in the same direction and is 2 meters per second. And now you are outside the train. Then what should be the velocity of B with respect to A? It will be 2 meters per second, it will be 10 meters per second, or it will be something else. देखो, how to solve such Ma'am, type 12 of... meter per second. Yes, it is 12 meters per second. Who has given the answer? Prince Satri. देखो बच्चे, कैसे करना था इस क्वेश्चन को, और थोड़ा सा सीख भी लो कि इस तरह के क्वेश्चन जब हमने निकालने तो किस तरह से सॉल्व करने हैं. This is your train and person is moving with 2 meters per second. ठीक है, and A is outside the train and now you have to observe the motion of B with respect to A. ठीक है, so for this you have to solve like this कि जो आपका जिसका मोशन आप स्टडी कर रहे हो, write that at first and minus subtract the who is observing the motion, that is A is observing the motion, and the third element here is that is train. ठीक है, तो आपको ट्रेन के विद रिस्पेक्ट मोशन को स्टडी नहीं करना है, आपको तो ए और बी का आपस का रिलेटिव मोशन स्टडी करना है. तो फॉर दैट द थर्ड वन यू विल फिक्स दैट थर्ड वन विद इट. ठीक है, उसको यहाँ पे रख दो. नाउ व्हाट इज द मोशन ऑफ द और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. ट्रेन के विद रिस्पेक्ट जो है वो बी की कितनी वेलोसिटी है, दैट इज 2. ठीक है, माइनस what is the velocity of A with respect to T, but A is at rest. ठीक है, A is observing the motion, so here you have to change. A तो rest पे, तो this situation is not possible, so here we have to change this. हम इसको change करेंगे, तो whenever we make some changes we will write here plus VTA, velocity of train with respect to A. तो velocity of train with respect to A कितनी थी, 10. We have to put the symbol plus. क्यों हमने plus किया, because actual expression was 80 and we have converted this 80 into TA. तो जब हमने इसको TA में convert किया है तो we have to put the minus sign, so it become 2 plus 10 is equal to 12 meter per second. So you can see when both are in the same direction the velocity will be added. जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनकी वेलोसिटी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, सिमिलरली नाउ सपोज A is observing the motion of B but B is not inside the, B is not moving in the same direction of the train. अगर B जो है वो इस तरफ को चल रहा है, ठीक है, and I am observing the motion here and train is moving in this side. तो सिंपल छोटा सा ट्रिक वैसी है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में तो वी वर एडिंग द बोथ, बट इफ दे आर इन ऑन द अपोजिट डायरेक्शन तो हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वैसे कर लो जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था. वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, जो थर्ड वन है ट्रेन उसको हमने इसके साथ जो है वो फिक्स कर दिया. वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में विल टेक इज -2 and 8 is not possible, we have to convert it into TA. When we make change we will put plus sign here. The velocity of train with respect to A is 10, so it become 8 meter per second.
ठीक है. नाउ सपोज ए ऑल्सो गेट इन साइड द ट्रेन, ए भी ट्रेन के अंदर चला गया. नाउ ही इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द बी. He is at rest in the train and it is also moving. B is again moving. So what should be the velocity of the A with respect to B? तो आप कैसे निकालोगे of B with respect to A? तो उसको ऐसे ही लगेगा 2 मीटर, जो एक्चुअल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा इनसाइड द ट्रेन. तो what you can observe from here, you can observe, you have seen here कि जैसे जैसे रेफरेंस पॉइंट चेंज होते जा रहे हैं उस तरह से जो है वो बॉडी के मोशन में भी जो है चेंजेस आते जा रहे हैं. एंड मोर ओवर वी ऑल्सो हैव टू सी कि इन विच डायरेक्शन बॉडीज आर मूविंग, वेदर दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. एंड इफ दे आर एट रेस्ट, वन इज एट रेस्ट, तो उसी वेलोसिटी से जो है वो बॉडी मूव कर रही है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछना है यहां तक? ओके, नाउ सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इसको बहुत ध्यान से समझना. अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट नजर आ रहा हो, नहीं पता चल रहा हो, तो यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन, लेकिन चीजों को ध्यान से समझना. ओके, नाउ रेफरेंस फ्रेम. व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम? ठीक है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है कि लेट इट इज ओरिजिन. ठीक है, इट इज पॉइंट ए, इट इज पॉइंट बी. ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट ए, रेफरेंस पॉइंट बी. तो रेफरेंस फ्रेम क्या है? इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इट. पोजीशन फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, दैट इज नोन एज रेफरेंस फ्रेम. जो एक ऐसा पॉइंट जहां से ऑब्जर्वर जो है वो मोशन को ऑब्जर्व करता है. When two particles are moving either in same direction or in opposite direction, their motion with respect to each other is said to be relative motion. This is the definition of relative motion. It can increasing or decreasing, जैसे मैंने आपको बताया. If it is in the same direction, it will be increasing. If it is in the opposite direction, it will be decreasing. It depends upon the position of the ऑब्जर्वर. ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि VT 10 मीटर पर सेकेंड है, VB 2 मीटर पर सेकेंड है. ये तो पूरा मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो दिस इज द रेफरेंस फ्रेम एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव मोशन. नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. सी हाउ टू डिराइव. जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि ये जो फॉर्मूला है, तो फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन दिस फॉर्मूला, लेट्स डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दैट. Listen, अब हम we were talking about the relative velocity and we know that relative velocity is the change in displacement. ठीक है, rate of change of displacement is known as relative velocity. Now see here, I have made the reference frames. ठीक है, ये है reference frame. This is reference point A and this is reference point B. ठीक है, and suppose P is the point which we are observing. ठीक है, हम P पॉइंट को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट B. ठीक है, फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट B द पोजीशन ऑफ P इज XPB. XPB इज द पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू B. ये मैंने आपको बता दिया. जिसको हम पहले लिखते हैं इट मीन्स उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसको हम बाद में लिखते हैं मीन्स वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है और वहां से उसकी ऑब्जर्वेशन हो रही है. तो XPB is the position of P with respect to B. Similarly, you can see here XPA is the position of P with respect to A. So I have written here XPA is position of P with respect to A. ठीक है. Similarly, now XPA can be calculated by XBA plus XPB. ठीक है, कैसे हमने ये किया आप यहाँ पे देख सकते हो. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? XBA. और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? XPB. अगर मुझे ये पूरा डिस्टेंस ऐसे निकालना है एक फॉर्मूले की फॉर्म में,
तो अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करूंगी तो आई कैन फाइंड आउट XPA. सो आई कैन ऑल्सो राइट एज XPA इज इक्वल टू XBA, ये वाला डिस्टेंस, प्लस अगले वाला डिस्टेंस XPB. इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, ma'am. Okay. Now, but here we are talking about the position of the P with respect to two different frames. ठीक है, two different positions. My topic is to find the relative velocity of B with respect to P. ठीक है, तो अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी और स्पीड. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वी विल अप्लाई दैट फॉर्मूला दैट वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन नंबर 1 with respect to time, because when we differentiate it we will get velocity and our task is to find the velocity. Now you can see dxpa upon dt is equal to dxba upon dt plus dxpb upon dt. This is the velocity of P with respect to A. This is the velocity of B with respect to A, and this is the velocity of P with respect to B. Clear? यहाँ इस हर स्टेप को ध्यान से देखो, जहां पे नहीं पता चल रहा वहां पे पूछ लो. Here, जैसे मैंने आपको बताया, we have to draw BA, और मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस करते हैं. Now here I am telling that how we have calculated this formula. तो यहाँ पे आ जाएगा VPA is equal to VBA plus VPB. My task is to calculate this one. So I will bring this here. मैं इसको यहाँ पे लेकर के आ जाऊंगी. तो I have VBA is equal to VPA minus VPB. This is the velocity of P with respect to A. And this is the velocity of P with respect to B. Is it clear? But here, this P point is at rest. So we can change here, we can make the changes. V with respect to P can be calculated as, sorry, here I have written wrong. It is BA. The velocity of B with respect to A. मतलब आप इन दोनों की आपस की वेलोसिटी निकाल रहे हो. B की with respect to A अगर आपको निकालनी है तो how we will proceed, हम जिसको चेंज करेंगे. ठीक है, वी विल मेक चेंजेस हियर. तो ये मेरे पास जो PA था, अगर मैंने इसको AP बनाया तो आई विल पुट नेगेटिव साइन हियर. अगर मैंने दूसरे वाले को BP बनाया, अगेन आई विल पुट नेगेटिव साइन हियर, तो इट बिकम पॉजिटिव. तो वी हैव VPB VBP माइनस VAP. तो ये तो आपकी लॉन्ग डेरिवेशन है. अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में इसको याद रखना है, अगर आपके पास 3 रेफरेंस पॉइंट दे रखे हैं, सपोज कर लो आपके पास जो एक x दे रखा है, एक y दे रखा है, एक z दे रखा है, और आपको बोला जा रहा है कि इन दोनों की वेलोसिटी आपको निकालो. आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z. तो आप छोटा सा काम ये कर लो कि इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, x को सब्ट्रैक्ट कर दो z से. ठीक है, और जिस तीसरे की बात नहीं करी हुई है वो आप इसके साथ जो चिपका दो, लगा दो इसके साथ, तो ये आ जाएगी आपकी जो है वो वेलोसिटी. इन दिस वे यू कैन फाइंड द नेट रिजल्ट. क्लियर? यस मैम. हाँ हाँ, ट्राई टू सी इट. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ एग्जांपल है इसमें. सी हियर, आपको बोला गया है कि आपके पास 3 व्हीकल्स हैं, एक ट्रेन है, एक बस है और एक कार है. ठीक है, and here the velocities are mentioned that the velocity of train with respect to car, ट्रेन की with respect to car velocity आपको दे रखी है, it is 100 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, velocity of train with respect to car is 100 मीटर पर सेकेंड. And also velocity of bus with respect to train is also given as 10 meter per second.
and you are asked what is the velocity of car with respect to bus. ठीक है, इन दोनों की आपस में विद रिस्पेक्ट जो वेलोसिटी पूछ ली है. अब लगाओ जैसे फॉर्मूला मैंने बताया, आपको पूछा है VCB वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, तो आप क्या करोगे, VC माइनस VB T, जो तीसरी चीज नहीं दी है उसको चिपका दो साथ में. आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है, लेकिन आपके फॉर्मूले में कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आ रहा है, इसको चेंज करो. चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस TC, और आपको BT दिया, ये तो ठीक दिया हो BT. नाउ पुट द वैल्यू, यू हैव minus 100 and it is given as 10, so you are left with minus 11 meter per second. Is it clear? Yes, ma'am. So Yes, it नेगेटिव साइन शोज कि अगर आपके एक बॉडी जो है वो अगर कार इस तरफ को चल रही है तो ट्रेन इससे उल्टी चल रही है यहाँ पे, या कार इस तरफ को चल रही है तो बस इस तरफ को चल रही है. ठीक है, अपोजिट मोशन, अपोजिशन, देयर इज रिवर्स मोशन. ठीक है, एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. इज इट क्लियर? So this is all about the relative motion. In today's class we have discussed what is relative motion. When we are observing motion of two objects with respect to each other, the motion is said to be relative motion, and this motion keeps on changing, and it all depends upon in which direction bodies are moving. If they are in the same direction, it goes on increasing. If they are in the opposite direction, they goes on decreasing. So this is the relative motion. और फिर हमने जो है आज की क्लास में पढ़ा कि रिलेटिव मोशन के लिए जो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताया मैंने कि जिसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं. सपोज वी आर स्टडिंग द मोशन ऑफ और वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू. We are studying the motion of one with respect to two, so we will subtract 1 minus 2 in this way. ठीक है, then from where we have derived this formula, आपको बताया दो different फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ले लिए, A और B दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ले लिए. एक पॉइंट P ले लिया हमने, P पॉइंट पे हमने जो है वो P पॉइंट का डिस्टेंस हमने जो है वो B से भी ऑब्जर्व कर लिया, A से भी ऑब्जर्व कर लिया, उन दोनों का आपस में भी देख लिया. From that we have differentiate the equation and we will get the velocity. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so this is all about the relative motion or relative velocity. Now what is relative displacement? Just a minute, sharing the screen. Displacement, what is relative displacement? Relative velocity हमने क्या देखा, relative velocity is the velocity of one with respect to other. ठीक है, similarly what is relative displacement? Suppose this is your origin. ठीक है, ये आपका जो है origin point है, and from here you are observing two different objects. ठीक है, one object is A and another object is B, and initially let time is t equal to 0 and the position of A is XAO. origin से ये कितनी दूरी पे है, XAO हमने वो पोजीशन ले ली इसकी, और दूसरे की पोजीशन हमने क्या ले ली, XBO. Is it clear? Here I have written XAO is the position of A with respect to O. O से हम अगर A को ऑब्जर्व करें तो वो यहाँ पे है, XAO डिस्टेंस पे है. Similarly अगर B को हम ऑब्जर्व करें तो दैट इज एट द BO. Now suppose आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t, अगर हमने टाइम t 0 था तो ये केस था, लेकिन t अगर टाइम जो है वो चेंज हुआ हमारा, सपोज 5 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद, यहाँ पे t इज इक्वल टू t लिखना था मुझे. आफ्टर टाइम t सपोज बॉडीज आर मूविंग, ठीक है, और दे हैव डिस्प्लेस्ड, दे हैव सम डिस्प्लेसमेंट. पहले ये बॉडी यहाँ पे थी, अब इतना पॉइंट से ये डिस्प्लेस हुई है, अब ये बॉडी यहाँ पे पहुंची है. सिमिलरली जो आगे वाली बॉडी थी वो पहले इस पॉइंट डॉटेड यहाँ पे जो मैंने लगाया यहाँ पे थी, और ये भी थोड़ा सा डिस्टेंस और आगे मूव की हुई है. अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर ऑब्जर्विंग टू डिफरेंट बॉडीज
from a fixed point, and that fixed point is origin. The distance of one is this and the distance of another is this, and initially both were at this point. After some time, we again are observing the both bodies. What we have observed, that some distance is covered by the body A and some distance is covered by the body B, and we are assigning the distance from with respect to origin. origin से हमने देखा कि पहली वाली बॉडी का डिस्टेंस XA हो चुका है. इनिशियली वी वर गिविंग इट नेम XAO, नाउ वी आर असाइनिंग इट नेम XA. अब इसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम देखें तो XA हो चुका है, और इसी तरह से B का अगर हम देखें तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इट इज XB. क्या आपको ये डायग्राम समझ में आए कि मैंने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी हुई है? वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इनिशियली दे वर एट रेस्ट, देयर from some specific point their distances were XAO and XBO. After some time they displaces and their distances become XA and XB. Is it clear or not? Yes, ma'am. Okay. Now we also want to know कि अगर वो पहले बॉडी यहाँ पे थी और अब वो बॉडी यहाँ पे पहुंची, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? इतना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना उस बॉडी ने कवर किया है, या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उस बॉडी ने कितना कवर किया है, कि उस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई है. ठीक है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो दैट डिस्टेंस. सो दैट वो उसको हम निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने अपना बेसिक किया हुआ है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो ए वाले पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट डिस्टेंस इज उसकी स्पीड इनटू जो टाइम उसने लिया टी. और सिमिलरली बी वाले ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी स्पीड और उसने जितना टाइम उसको डिस्टेंस को कवर करने के लिए किया, तो इतना जो है डिस्टेंस इज कवर्ड इन टाइम टी बाय बॉडी ए. द डिस्टेंस कवर्ड इज VAT and the distance covered by body B is VBT. Now see, हाँ जी बच्चे देखो, अब फिर से जरा से मैं यहाँ पे बना देती हूँ वो बॉडीज. ठीक है, ये थी शुरू में जो है वो ये बॉडी जो थी यहाँ पे थी, और इसके बीच का डिस्टेंस मैंने बताया XAO था, और फिर थोड़ी देर के बाद बॉडी जो है वो यहाँ पे पहुंच गई, और इसका डिस्टेंस जो था वो XA. हमने टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लिया. ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा मैं आपको 10 बार बता दूंगी, लेकिन पूछना काम तुम्हारा है. ठीक है ना? तो अभी मैंने आपको बताया कि बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का इतना डिस्टेंस जो है बॉडी ने कवर किया है. अगर हम इस डिस्टेंस को अगर हम रेफरेंस पॉइंट से देखें तो उसको हम नाम दे रहे हैं XA. तो क्या मैं इस X को A को ऐसे लिख सकती हूँ? इज इट राइट कि XA क्या है? जो रेफरेंस से अगर इस डिस्टेंस को देखने लगूं तो जितना डिस्टेंस उसने पहले कवर किया वो तो था ही था, XAO तो है ही है, और साथ में थोड़ा वो T टाइम के बाद और चली वो, और कितना चली ए बॉडी V इंटू टी चली जो हमने पीछे निकाला. तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक XA कितना है, XAO प्लस VAT. इज इट राइट और नॉट? Yes, ma'am. I don't think कि other बच्चे those who are sitting in this class saying कि ma'am we are not getting this topic or we are not understanding what you are saying. Only Prince is attentive, he is getting जो भी है. तो फिर तो प्रिंस को तो अगर मैं ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको तो अगर कोई ना भी पढ़ाए तो दे आर वेरी कीन टू लर्न, तो वो अपने आप भी पढ़ लेते हैं. Rest of the students they are not responding. So this is XA is equal to XAO plus VAT. So this is the distance of the A with respect to origin. Similarly, distance covered by B. B वाला जो था, जैसे यहाँ पे फिर से मैं इसको बना दूं, तो B वाला जो था स्टार्टिंग में सपोज कर लो जो फर्स्ट फ्रेम लिया था मैंने T इक्वल टू 0 का, तो B वाला यहाँ पे था. ऑरिजिन से इसका